Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhee Bakshee. In this show, as you know, that every week we bring you leading personalities. We talk to them, we hear their stories, and through them we also understand what's happening around in the society. So right now also a very special guest with us on Rajya Sabha TV. She's a great performing artist, a veteran singer, and also somebody who's been just conferred with Padam Shri. So many congratulations to Malini Awasthi. Welcome to the show. Thank you so much. And of course, as I said, congratulations to you. How does it Thank feel? you. Feels great and feels extremely satisfying, especially to see 5 folk artists this year getting Padma Award this year. I think that's a great sign. Any government or any society, I've always felt, who does not recognize or patronize folk music loses its identity. So I look at it as a very, very bright sign that government has this time, after a long, long time, I would say, awarded 5 of the folk exponents. And you know, we were talking earlier, we were talking about preserving and going back to our roots actually. Yes. Would you like to talk more about that? Traditions is all about going back to your roots. In fact, as I speak to you right here, I feel that since my viewpoint will be slightly different from the audience maybe sitting at home, because I normally connect to the same people who are very much connected to the roots. Otherwise, I wouldn't have existed. They are my audience. They want to invite me and listen to me, irrespective of the fact that they are living in metros or in multi-storied buildings, of even far away. But a small part of them still stays there in the villages. It wants to connect, and the further you go away from the roots, the stronger the urge to remain connected from the roots. And I guess this is a very psychological, order, that the more you are deprived of something, the more the longing, for the roots. And in today, modern times, I think it's a reality. People will move away from their roots to in search of pursuits of career, of livelihood. But at the same time, I think it's not only about being disconnected from the villages or the dialects, or because I talk of villages here because that's where you still find, the shades of India, the traditions still very, very alive in small... In its raw form. It's raw, yes, form. In the purest form. But unfortunately, most of us have, left that generation behind, back. But I feel more than that. I would say emergence of nuclear families, which has, I would say, been the worst spoiler of traditions. The beauty of everybody staying together, sharing everything together, learning from the older generation, so and the then passing, yes. तो थोड़ा सा लेकिन पहले जाएं आप आपके करियर से के लिए भी की शुरुआत जो है आपकी कहाँ से हुई, मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो मालिनी अवस्थी हमारे सामने आती हैं, हमने आपको देखा तो एक अद्भुत परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ये जर्नी रही है वो किस तरह की? बहुत लंबी यात्रा रही है। आपका शो ख़त्म हो जाएगा उस यात्रा की चर्चा करते। बहुत लंबी यात्रा रही मेरे ख्याल में। जो मेरी पहली याद है उसमें मैं हमेशा से गाती थी, नाचती थी। माँ और पिताजी का पूरा एक उनका सपना था, जो मुझे लगता मैं अब जी रही हूँ। मुझे लगता उन्होंने भी परिणति सपने की इस रूप में होगी कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन एक आइडियल पेरेंट्स की तरह से बच्चे में प्रतिभा है तो उसको ले करके जाएं और अच्छे गुरु के पास लेके जाएं। यहीं पे बहुत सारे माता पिता पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, घर में ख़ानदान में दूर दूर तक कोई नहीं गाता हमारे यहाँ। मेरी माँ भी नहीं, पिता कोई नहीं गाते थे। मैं बहुत पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से हूँ, जहाँ मंच पे कोई गाएगा ये भी उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन प्रतिभा दिखी तो एक फ़र्ज़ के रूप में कि वो खिलना चाहिए उसको, मुझको लेकर के। हाँ। जी। और उसके बाद फिर वो कहानी अलग हो जाती है, गुरु कौन मिलता है और उसमें फिर शिष्य की कैसी लगन आती है। देयर आई गेस आई वाज वेरी 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 ब्लेस्ड। और But you studied music also. It's been 35 years of classical music training only. In fact, what you hear now is a very small particle of what I have studied. Basically, it's a classical vocal training. तो बस समझिए कि मैं 5-6 साल की थी तब से सीखना शुरू किया। एंड शुजात हुसैन खान साहब रामपुर घराने के, उनसे 5-6 साल, फिर राहत अली खान साहब गोरखपुर के, दलेर मेहंदी और हम गुरु भाई बहन थे, साथ ही सीखते थे।
गोरखपुर में। उसके बाद भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने MUs किया, और उसके बाद शादी हो गई जल्दी। उसकी भी एक अलग कहानी पूरी बताऊंगी। एंड देन हमारे गुरु, जिनको बहुत कुछ अचीव आपने बहुत यंग एज में किया। मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर अचीविंग अ लॉट, आई थिंक एट अ रिलेटिवली यंग एज। थैंक यू। और फिर जिनको अब की बार सरकार ने पद्म विभूषण दिया है, हम जिन पर हम सब, मतलब भारत की मैं कहती हूँ धरोहर, हमारी गुरु पद्म विभूषण गिरजा देवी जी, उनसे फिर 99 से जुड़ा हुआ, अभी तक उन्हीं से सीख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी विधा हो, आप गज़ल गाएं, फिल्म का गाएं, कुछ भी गाएं, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो आपको बिल्कुल, जैसे कि आपको अच्छा हिंदी लिखने के लिए पहले वर्णमाला का, शब्दों का आपको अभ्यास होगा, तब आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो क्लासिकल म्यूज़िक मुझे लगता है बिल्कुल ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस धरोहर को अब संजोने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है? आपको लगता है कि माहौल बना है फिर से? नहीं, माहौल तो बनाया है हमारे जैसे कलाकारों ने। बिल्कुल नहीं था जिस समय हमने शुरू किया, मतलब मैंने तो बहुत आलोचना भी सही। आलोचना ये सही कि लोग से शास्त्रीय जाते हैं, शास्त्रीय से तो पीछे लोक संगीत की बात कर रही हैं। और कई लोगों ने ये भी कहा कि उतनी, जिसने इतना पूरा बंग की मैं ठुमरी सीखी हो, शास्त्रीय विधा सीखी हो, तो लोक क्यों? और मैं जितना वो सवाल ये पूछते, मेरे अंदर उतनी ज़िद मजबूत होती जाती कि शायद लोगों को लोक का वो स्वरूप पता ही नहीं है। जो मैं देख रही हूँ वो ये समझ ही नहीं रहे हैं। गायक कलाकारों में मैंने ये भेदभाव देखा कि लोक को लेकर वो एक सौतेला व्यवहार, एक दोयम दर्जे का संगीत है, उसको मान के चलना। उतना ये प्रतिबद्धता मेरे अंदर, उतना कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग होता गया दैट आई हैव टू bring out the fine nuances of folk. I have to talk about the grace, the dignity and the beauty that folk has. I think folk को अभी भी कुछ लोगों ने सिर्फ सैया और बिंदिया, चूड़ी और यहीं तक समझा, और लहंगा बिछिया तक समझा है। तो लोक इसके बहुत अलग है। लोक उत्सव के बारे में है, लोक संबंधों के बारे में है, लोक उदारता के बारे में है, लोक मंगल के बारे में है, और लोक स्त्री की सबसे बड़ी जो शक्ति रही है सहनशीलता के बारे में, कि उसने दुख भी गाते गाते किस तरह से सहा। तो you bring those nuances very beautifully. In fact, recently when we saw you also, I mean, bring for us, I mean, a little flavor of that. In fact, you talked about, let's say, that father-daughter relationship in one of your songs, which is so pertinent and really bring us to the reality of relationships as they are. Would you, through some of your rendition, I will just sing a few lines of a song. ये हमारे यहाँ निराई का गाना है। निराई माने आपने जैसे धान की रोपाई होती है खेत में, तो जब रोपाई के बाद में कई बार और भी घास उसमें उगाती है, वो पौधे की ग्रोथ को रोकती है। तो फिर निराई होती है कि आसपास जो और घास है उसको हम निकालते हैं, किसान निकालते हैं, उनकी पत्नियां ज़्यादातर निराई करती हैं। तो ये निराई का गाना है, और उसमें बेटी अपने पिता से कह रही है। सोचिए, लोकगीत है जिसमें कि हम लोग आज कहते हैं कि हम बड़े आधुनिक हो गए हैं, आज लड़कियां जो है, इट्स वेरी कूल टू हैव अ डायलॉग विद योर फादर। उस ज़माने में क्योंकि एक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोक के बारे में, फोक के बारे में, ये ट्रेडिशनल या पुराने गुजरे ज़माने के बारे में कि ये बड़ा मिथ्या भ्रम है, ये बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है कि बड़ी बंदिशें थीं और बंदिशों में हमको 7 तालों के भीतर रखा जाता था। बिल्कुल नहीं, स्त्री आज जितनी उन्मुक्त है उससे कहीं ज़्यादा उन्मुक्त थी, और जो कहना चाहती थी कहती थी। वो सारे गाने उसके गवाह भी हैं। तो यहाँ अपने पिता से कह रही है, और देखिए क्या सुंदर सलाह। बाबा नी मियाँ के पेड़ जिन काटियो बाबा, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटियो बाबा, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। Gosh, I'm getting goosebumps. Actually, it's such a pop-act performance. But apart from that, the meaning of it all. I mean, the meaning of the song is, see, today we celebrate Environment Day, and we tell young students, young children also, to plant trees, and especially the neem tree. लेकिन पुराने ज़माने में हर घर में नीम का पेड़ नहीं है, तो उस घर को शुद्ध ही नहीं मानते थे।
और ये तो अब डॉक्टर्स वगैरह सब बता रहे हैं कि नीम कितना बड़ा मतलब अपने आप में स्वास्थ्य के लिए शायद सबसे बड़ा है वो सब. इट्स अ प्रूवन फैक्ट नाउ. और नीम के पेड़ के उस समय कि लड़की विदा हो रही है अपने घर से और विदा होते होते अपने पिता से कह रही है कि बाबा निमिया के पेड़ जिन काटे, जिन माने नहीं, नीम के पेड़ को नहीं काटना. इस नीम पर न जाने कितनी चिड़ियों का बसेरा है. मैं अपने भाई की बलैया लेती हुई इस घर से विदा हो रही हूँ, लेकिन बाबा इस नीम के पेड़ को मत काटना. बाबा जो इस नीम के पेड़ को काट दिया, सगरी चिड़ैया उड़ गई हैं, सारी चिड़िया उड़ के चली जाएंगी और रह गई है निमिया के. यदि मेरा तो घर उजड़ रहा है, लेकिन यदि ये तुमने नीम का पेड़ भी काट दिया तो इन चिड़ियों का बसेरा कहाँ होगा. तो मेरा तो बसेरा उजड़ रहा है, इनका बसेरा ना उजड़े. Conversation with lot of meaning here. Conversation with lot of meaning, lot of I would say spiritual messages about the importance of the tree, and then a metaphor using the tree. And she's in fact talking about herself, and she's blessing her brother, and she is unhappy, but she can't help the fact that she's married and she has to leave the house. Yeah. But then she compares herself to the birds, chirping How birds. beautifully on the you tree. actually express it also. But do you think you're doing that actually, that, we're talking about gender empowerment as we're talking, I mean, International Women's Day is very nearby. Do you think that through your performing art, you're also conveying a message to the society, not pertinently as to how women should be protected and all, but how actually this Stri Shakti should be celebrated? I'll tell you what, in fact, way back when I decided that nobody else is doing, and somebody has to talk about the strong aspect hidden behind the beautiful lyrics of these folk music. Keep music aside. I'm talking about the content and the literature of these songs, which are so beautiful. And I thought, and I told myself that, well, Malini, this is an audience which is away from the dialects now. Probably they are not even blessed enough to be staying with their grandmothers. So you have to treat them as a layman, as an ordinary person who's listening this for the first time. Okay. And my songs were not the popular album songs, which you can relate to even if you heard one random Punjabi or Telugu, see, Kolavaredi, songs that you've heard and songs that, get on your mind. It's easy to relate to them, but these are fresh songs. So how to make them contemporary as well as relevant to the younger audience. And I thought that I have to adopt a role of that of a storyteller. Okay. Of somebody who talks about the meaning behind the song. And that has been the real challenge for me, because I thought it's not about only Malini as a singer. It's about sending that message across, the very question that you asked just now. So I have been doing it. Okay. And it has been as difficult or as simple as, swimming, against the wave. And the more you do that, the challenge is bigger, the stronger, and the more you get power to do it. तो बिल्कुल धारा के विपरीत बहना जो है वो ज़्यादा शक्ति भी देता है. लेकिन जनता ने, मैं तो सर माथे पे, इनफैक्ट मैं शब्द नहीं मेरे पास जनता का आभार करने के लिए. और उस जनता में 20 साल के लड़के भी थे जो कहते थे कि अम्मा हमारी गाने आपकी गाती हैं और सुनती हैं. And there were so many women who told their sons to download my songs for them. So as you've talked about celebration, also the challenges which we will talk about after this very short break we are taking here on The Quest on Raj Sabha TV. Very, very interesting conversation going on with Malini Awasthi. Don't go away because you'll be missing out a lot. So stay tuned to The Quest on Raj Sabha TV. Welcome back to the show. You're watching here The Quest on Raj Sabha TV. We are right now talking to Malini Awasthi. So you were talking about the challenges also. What have been the real challenges? But you've been performing all over India, all across the world also. Yes. And when we are talking about music, there are all kinds of music here. Yes. You of course are an exponent of classical music, of course now of folk also. But when you see in cinema, when you see in other platforms, there is all kind of music that we hear. So your take on that, how do you really balance that? How do you really take out that purity out and really also tell people as a storyteller the right things? See, the purity comes from heart. You have to, I always say that you can learn singing and perform a song. That's a different story. But to be a folk singer
if you have not experienced those shades of life that folk songs talk about, you cannot bring that purity and sincerity to that song song talks about. And as I said earlier, the main challenge, I would say, was about perception. The perception, the mindset of people regarding folk is still that, this is something that is ancient. This is totally irrelevant today. It has no connection today. For example, cinema, how does it view it? I mean, for example, how do you find that space? Cinema, see, as a singer, I can tell you that I have got offers to sing so many songs, and I have been lucky enough to be staying here and to be singing for Bombay, because whenever a song was required, I got a call from Preetham ji or Anu Malik ji, and I have done. But I keep, interestingly, let me share this with you, I keep a sequence of folk songs from films. Okay, yeah. When I perform live on stage, just to educate my audience that songs today, if you recall, if the recall value of certain songs from film songs is still very, very relevant today, is because they had folk quotient in them. And any song which had folk quotient in them, whether it was a 50s song, whether it is a 2015 song, will move you. You will be bound to be, moving to that song. There are so many remixes and they are played on lounge and DJs. Only the songs which have the folk touch in them. It can be northeastern touch, it can be Gujarati Garba touch, it can be, Mand in Rajasthan, it can be UP, so UP Bihar's touch. But what is very, very disappointing is, again, I'll come back to the same thing that I was mentioning about the perception. Even in Bollywood, the perception about UP and Bihar songs is so crass and loud. And that pains a lot. And to a large extent, Bhojpuri films have also contributed, I would say, adding to that perception, because I'll tell you something. When I started singing, that was quite, that happened, yes, I would say 2 decades ago. But when I decided to take it as a challenge and to take it in a popular medium, make it Contemporize it. Very, very contemporary. I'll show that even the pure folk songs can be performed in such a way that they will move you. You will be compelled to shake your leg and dance on the beats. Yet leave the auditorium that, well, this was so cool and so dignified, so graceful. So how did you actually deal with that? Because that's a very valid See, I always space believe we are that talking about. instead of talking about that, what do you do is, आप बड़ी लकीर खींचते हैं उनके सामने. People will automatically, when you एक आपका जब एक ऑरा बन जाता है, आपकी एक अलग एक आपका एक you are known for something else, तो उस तरह की ऑडियंस आपके पास आएगी ही नहीं. सो मेरे सामने वो एक ज़रूर एक दिक्कत थी कि यदि भोजपुरी का मतलब लोगों को सबको, आज भी आप इंटरनेट में भोजपुरी यदि करें, जिस भाषा ने मुझे इतना दिया, जिस भाषा ने इतना सम्मान दिया, जिस भाषा की वजह से मेरी भी पहचान है अवधी और भोजपुरी, उस भोजपुरी में एक परसेप्शन वर्ल्ड वाइड, मैं कहूँगी, इतना कुछ कलाकारों ने, मैं कहूँगी, और कुछ फिल्मों की वजह से भी इस तरह का आ गया कि वो हिंदी फिल्मों में भी आज भी वो भोजपुरी दिखाएंगे तो the heroine will be wearing next to nothing. Yeah. And the songs will be such, the picturization is also so weird. So it's all about perception created. So as a performing artist, आपको ये भी लगता है कि समाज में जो एक कहीं ना कहीं भूमिका और जिम्मेदारी भी है, और जो आप कर भी रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब आप आज के माहौल में देखती हैं, हम जब बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस की, हम हार्मनी की बात कर रहे हैं इंडिया में और हर जगह भी, तो आपको लगता है कि वो एक कला जो है बहुत सशक्त माध्यम है? बहुत ज़्यादा. मैं आपको उदाहरण दूँ. मैं गई प्रोग्राम में देहरादून, और देहरादून में कार्यक्रम दे रही थी. उसके जस्ट पहले ये अपने घटना हुई थी जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, यंग लड़के सब, जो इनकी डेथ हुई सब पठानकोट हमले में. 2-3 दिन बाद ही कार्यक्रम था. तो मैं कहीं भी डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि क्या गाऊंगी शुरू से. इट्स ऑल वेरी वेरी इम्प्रॉम्प्टू. जो उस समय आया तो मैंने एकदम से वहाँ पर एक मुझे सोहर याद आया. दादी कहती है कि बच्चा आ गया, हमारे वंश का नाम हो गया. But I'm going to present a folk song, a sohar, where I will make you understand that our forefathers, the women, although they were illiterate,
they were so enlightened. They were such enlightened souls that listen to what they have written and sung. गाना ये है, सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो ललना वैसन सुन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो। जिस तरह से एक मंदिर में दिया ना हो, माथे में यदि सिंदूर ना हो, वैसे स्त्री की गोद में यदि संतान बालक नहीं है तो स्त्री की गोद किस काम की। ये गाने की ओपनिंग लाइन है। आगे वो कहती, मैंने बड़े बड़े उपाय किए, ईश्वर की कृपा हुई तभी मेरे संतान जन्मी। संतान का जन्म क्यों हुआ? वो कहती है, पुतवा को देबो मैं देसवा की, सेउवा में देसवा की, सेउवा में हो, अरे ललना बाढ़ हुई हैं, देसवा के काम आई हैं, जन्म हमार सुफल हुई है हो, के ललना बाढ़ हुई हैं, देसवा के काम आई हैं, जन्म हमार सुफल हुई है हो। जब मेरा बालक बड़ा होगा और देश के काम आएगा तब उसको जन्म देने के लिए मेरा जन्म सुफल होगा। तो मैं IMA मतलब को मैंने इंगित करते हुए देहरादून में मैंने कहा कि ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जहाँ से रोज नए सपूत आते हैं और कलेजे पे पत्थर रखकर गर्व से माँ जो है अपने बेटे को देश के लिए सौंपती है। और इस तरह की वारदात में जब अपने जवानों को खोते हैं तब समझ में आता है कि पुरखिन उन्होंने कहा मतलब क्या था। हम संतान का जन्म देश के लिए हो, समाज के लिए हो। मुझे लगता है आपसे इतनी बातें कर रहे हो, जो सुन रही हूँ मेरे ख्याल से दर्शकों को इतना मजा आएगा जब ये सुनेंगे, और अभी भी देख रहे हैं आप। लेकिन बात ये करें, जब हम बात कर रहे थे कि आजकल जो माहौल है, महिलाओं की बात ज़रूर थोड़ी और कर लें। क्या लगता है जो इतनी परेशानियां हम देख रहे हैं, तरह तरह के क्राइम्स की जो हम बात कर रहे हैं, उसके बीच में हम बात कर रहे हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें कैसे, औरतें कैसे अच्छा फील करें, आपकी क्या सोच है यहाँ पे? देखिए, हर चीज़ की कुंजी एक ही है, चाबी। सब बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए, कबीर कह गए, सब कह गए, बुद्ध कह गए, सब कह गए, वो है संतुलन। संतुलन कहीं भी इधर उधर डगमगाएगा तो वो हम आप क्या कोई भी वो डगमगाएगा अपने रास्ते से। मुझे लगता है थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा है वो कहीं ना कहीं पर। पहली बात तो हम इस बात में एक खुशी महसूस होनी चाहिए कि 2016 में आज जब हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत है। मेरी गुरु से मैं बात करती हूँ, वो खुद 87 साल की हैं, तो मैं पूछती हूँ उनसे और मैं अक्सर चर्चा करती हूँ कि क्या दौर उन्होंने देखा है और उन्हें अब कैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि जिस समय लड़कियों को पढ़ाना ही एक चुनौती थी, जैसे मैंने कहा मुझे संगीत सिखाना भी उस समय एक चुनौती थी, आज मुझे लगता है फ़ख्र करना चाहिए। पहली बात तो पॉजिटिव मैं बताऊंगी कि वाकई जो एक स्त्री सशक्तिकरण जिसको आप कहें, तो वो मुझे लगता है सरकार ने भी बहुत काम किया है, समाज ने भी बहुत काम किया, और जागरूकता जो आई है उसका असर गांव कस्बे से लेकर के बड़े शहरों तक में दिखता है। आई थिंक दिखता है। मैं यहाँ पर बस एक लोग, चूँकि मेरा नज़रिया अलग है, मेरा दृष्टिकोण लोक संगीत के झरोखे से झांकती हूँ, तो मुझको ये लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि गाँव में स्त्रियाँ ज़्यादा सशक्त हैं शहर के बनिस्बत। नहीं, वो जो एक इनर विजडम है और जी, मुझे लगता है कि हमने अभी भी नौकरी करने को सशक्तिकरण माना है, हमने अभी भी आर्थिक निर्भरता को सशक्तिकरण माना है। क्या सिर्फ अपने पैरों पे खड़े होना या सिर्फ आर्थिक इंडिपेंडेंस होना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या सिर्फ उसी से ही महिला सशक्त होती है? महिला सशक्त होती सबसे पहले अच्छे संस्कारों से, जहाँ पर वो सबको जोड़ करके जाए। और मैं एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड देखती हूँ, हमारे अपने जान पहचान में महिला हैं, वो अपने बेटे को, बड़ी बेटी के लिए बड़े अधिकार के संग, बहुत काबिल बेटी कि बहुत मासूमियत से उन्होंने कहा मेरी बेटी चाय भी नहीं बना पाती है, चाय बनाना भी नहीं, मैं तो क्या होगा और ये वो। तो मैंने सोचा कि 26-27 साल की बेटी हो गई इनकी, यदि ये चाय बनाना नहीं सिखा पाई तो बच्ची की तो कोई गलती है ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कुल कि नारित्व जो है अपना, एक नारित्व भी नहीं, जो लड़की आत्मनिर्भर होगी, जो लड़की अपने पैर पे खड़ी होगी,
उसको अपना काम तो सारा ही करना होगा। तो मुझको लगता है कि रिश्ता वही है जहाँ पर कि आप ये शारीरिक श्रम की बात नहीं है, ये किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाकर के लिए करने की बात नहीं है। आपके अंदर यदि प्यार है किसी के लिए, आप यदि अपने को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, तो थकी हुई आएंगे तो आप बच्चे के लिए भी कुछ नया बनाना चाहेंगी, आप अपने किसी घर के लिए भी करना चाहेंगे। टॉकिंग अबाउट बस जबकि हम कार्यक्रम समाप्त करें, जबकि मेरा बहुत जी कर रहा है कि बहुत बातें करूं, एक क्वेस्ट क्या है आपका? जब हम क्वेस्ट मेरे शो का नाम है, तो अगर आपकी जर्नी को देखें आप और एक ड्रीम देखें और एक रोड मैप देखें तो कैसे देखते हैं, बहुत ब्रीफली? मेरा क्वेस्ट, मेरा ड्रीम है कि नई पीढ़ी को सेंसिटाइज करूं फोक के बारे में, जो अभी भी नहीं है। और वो मुझे लगता है कि एक अकेले मालिनी अवस्थी कर भी नहीं सकती। हमने एक अपनी संस्था बनाई है सोन चिरैया, जिसके ज़रिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा ड्रीम है, मैंने सरकार से भी इस बारे में बात करी है, कि शायद हर प्रदेश में, हर प्रदेश की कम से कम एक राजधानी में एक विश्व स्तरीय, हर प्रदेश की रीजनल जानकारी को देता हुआ एक बहुत बड़ा आर्काइवल, एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम तो नहीं कहना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा संग्रहालय इस ढंग का हो, जो कि आज की पीढ़ी वहाँ पे जा कर के लोक कलाकारों की ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर हो, जहाँ पर वर्कशॉप्स नए बच्चों के लिए हो कि वो जाकर सीख पाएँ। क्योंकि एक बड़ा स्कैरी ट्रेंड है ये, आप लोग नहीं समझ सकते कि अभी वो पीढ़ी है जिसको गाने पता हैं, जिसको अपनी आर्ट पता है, चाहे वो बिरहा के हों, आल्हा के हों। उनके नए बच्चों ने तो दुखी होकर के वो गाना बजाना भी बंद कर दिया, करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो नए बच्चे तो अब नौकरी पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें अपना पेट भरता नहीं दिखाई देता। तो वो कम से कम नए बच्चे सीखें, ऐसे लोग सीखें जो जुड़ सकें। तो ये वेकअप कॉल टाइम है सरकार के लिए या स्पॉन्सर्स के लिए। कोई भी यदि सुन रहे हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आई थिंक एवरी स्टेट, एमपी हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब, आई वुड से। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी सरकारों को अपने कम से कम कैपिटल में, एक दिल्ली में काफ़ी परफॉर्म किया उसके। यूपी में तो देखिए हर गांव शहर अपने आप में एक लिविंग हेरिटेज है, लेकिन उनका क्या, जो कि कट गए, मान लीजिए बाप दादे हैं, जमीन बेच करके पटना आ गए, पटना से आ गए दिल्ली अच्छी बेहतर जिंदगी की तलाश में। तो पोतों की तो कोई गलती नहीं कि बाबा ने तब बेच दिया, वो अब जुड़ना चाहते हैं, वो अब जानना चाहते हैं। So very brilliant point that you're making here, and you've made throughout this interview. Here is a performing artist, a singer, somebody who is really bringing back the roots to the society today, and somebody who's also educating a lot through her singing. So I think that's a very valid mixture and a very significant contribution, Malini Awasthi, that you are making to the society. Trying to do my best, trying to do. And we really wish you all the best from Rajya Sabha TV, and you keep continuing this. I would say you're a soldier of art and music, I would say. Yeah. That is exactly what I feel I am. That's the role that I have. So I'm always on a mission, always in a mission. Thank you so much for sharing your mission, your journey here on this show, The Quest on Rajya Sabha TV. And that was the brilliant Malini Awasthi. And as I try to really look at her, she's somebody who not only energizes you through her singing, but also bring back the whole root and tradition that we're somehow missing today. So thanks a lot for watching this particular edition of The Quest here on Rajya Sabha TV. Keep tuned in. Namaskar and bye-bye.